So, welcome to the students. This is the lecture number 2 of the complex stress. complex stress के ऊपर हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम क्या लर्न करेंगे दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द ओब्लिक प्लेन, राइट। तो जहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करेंगे दैट हाउ वी विल, जो टॉपिक है आपका दिस इज ये आपका लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 टॉपिक इसमें होगा दैट हाउ वी विल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा है जो इंट्रोडक्शन था उसका। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का जो फर्स्ट लेक्चर था दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी मस्ट नो दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द complex stresses in the oblique plane, right? So ये है how we have to, जो आज टॉपिक है हमारा, we have to calculate the stresses in oblique plane, right? This is the topic. Actually this is the basic of this topic. Basic जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमें stresses को how we have to find the stresses in the oblique plane, ये हमारा basis of this topic है। अब इसमें stresses को कैलकुलेट करने के लिए ओब्लिक प्लेन्स के ऊपर, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन द ओब्लिक प्लेन। वन मेथड इज कॉल्ड द ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वन मेथड दिस इज कॉल्ड द एनालिटिकल मेथड, यू अंडरस्टैंड। So there are 2 ways to find or calculate the stresses on the oblique plane. तो एक है आपका है एनालिटिकल मेथड, right, and the second one is graphical method. In the analytical method, we will derive the equations of the stresses, right? Analytical method में हम क्या करेंगे, जो stresses की equation है उनको हम analytically derive करेंगे, you understand? And graphical method, इसको हम Mohr circle के द्वारा we use the Mohr circle, और Mohr circle से we will calculate the stresses in the oblique plane, you understand? तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके, there are 2 you can say ways to find the stresses in the oblique plane. तो first we will start this analytical method. Analytical method से we will start it, right? So with the help of the analytical method, देखिए अब स्ट्रेसेस आपकी कितनी है, बाईएक्सियल प्लेन जहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, दिस इज योर बाईएक्सियल प्लेन, राइट। सो जो आपका आ गया सिग्मा एक्स, दिस इज योर टाउ एक्स वाई, टाउ xy, and this is your sigma y, right? जब ऊपर के वाला क्या होगा, that is your sigma y, and sigma y, and this is tau yx. This is your sigma y, and this is tau yx, you understand? Likewise this is ऐसे होगा,
So it means that in the general state we have to find the stresses. हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है, सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है एंड टाउ वाई एक्स फाइंड आउट करना है. यू अंडरस्टैंड? सो जो जनरल हमें स्ट्रेसेस में फाइंड आउट करनी है दैट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई. So we have to derive the formula for the sigma x, sigma y and tau yx. अब देखिए, these are the three stresses altogether. So इसको हम इकट्ठे जो है वो ड्राइव नहीं करेंगे. If we will drive it, जो इसका फार्मूला इकट्ठे ड्राइव करेंगे तो that will give you some confusion, difficult हो जाएगा. So that what we will take some particular case, or you can say that the simplest case of this. हम जो सिंपल से सिंपल जो केस होगा एक पर्टिकुलर केस हम लेंगे और पर्टिकुलर केस के ऊपर वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस. फ्रॉम दैट आपको उसका एक कंसेप्ट जो है, डेरिवेशन का कंसेप्ट उस पर्टिकुलर केस से पता चलेगा कि हाउ वी विल ड्राइव दैट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस ऑन द ओब्लिक प्लेन. वी विल कंसिडर सम पर्टिकुलर केस, राइट? तो उसके बाद हम when we will understand the concept to drive the equation for that particular case, then we can drive the equation for the sigma x, you are this sigma x, sigma y and tau yx. You understand that? तो जहाँ पे हम जो particular case लेंगे, in this case I will take the particular case sigma x. सिर्फ one case I will take, or you can say that uniaxial loading. In this case only I will take one particular case, that is sigma x. That is the uniaxial loading particular case, right? तो uniaxial loading हम इसमें ले लेंगे. You understand this? तो पर्टिकुलर केस क्या लेंगे? सपोज करो वी विल टेक पर्टिकुलर जो केस जिसके ऊपर जो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं दैट इज पर्टिकुलर केस क्या है? सिग्मा एक्स. वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द सिग्मा एक्स ऑन द ओब्लिक प्लेन और ऑन द inclined plane, and when we will understand the concept of this, that how we will drive the equation, how we can drive the equation, then we can drive the formula for sigma x, sigma y and tau yx, right? So ये जो particular हम केस लेंगे, you can say this is uniaxial loading. तो इसको जो सिंगल केस लेंगे तो हम इसको uniaxial, this is called the uniaxial loading, right? So देखिए यहाँ पे so consider the oblique plane. This is your oblique plane. Consider the oblique plane and it makes an angle theta with the vertical, right? ये वर्टिकल से कौन सा एंगल ड्रा बनाएगा ये? दिस इज एंगल थीटा विद द वर्टिकल, राइट? तो दिस इज योर सिग्मा एक्स इज एक्टिंग लाइक दिस ऑन दिस प्लेन. आई एम जस्ट कंसिडरिंग द जो केस फर्स्ट है क्या है? यूनिएक्सियल लोडिंग सिग्मा एक्स ले रहा हूं मैं. सो देयर विल बी द अपोजिट equal and opposite force on this sigma x. You understand? So here we have to learn that how we will drive the equation of sigma x on the inclined plane. You understand? अब now understand the things. जहाँ पे आप समझिए तो क्या था ये? First I will again repeat it that here we have to, ये जो मेरा लेक्चर था सेकंड, इसमें क्या था कि वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन द oblique plane. We must know that how we will calculate the stresses
ऑन द ओब्लिक प्लेन। तो स्ट्रेसेस कौन सी होंगी? दैट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। वी मस्ट नो दैट हाउ वी विल कैलकुलेट दैट, यू अंडरस्टैंड। तो जहां पे जो मैं डेरिवेशन जो इसकी स्टार्ट कर रहा हूं, एनालिटिकल मेथड आई एम यूजिंग हियर, सो इन दैट केस आई एम नॉट टेकिंग ऑल द थ्री स्ट्रेसेस ऑल टुगेदर। मैं तीनों स्ट्रेसेस का एक इकट्ठा लेके उसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज उसमें हमारी कैलकुलेशन भी जो है वो डिफिकल्ट होगी, कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव जस्ट कंसिडर ए पर्टिकुलर केस, सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले लीजिए। तो सिंपल फॉर्म क्या होगा कि व्हेन देयर इज ओनली वन स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, राइट। तो पर्टिकुलर केस जो पहला केस मैं ले रहा हूं कि दैट सपोज वी कैन से दैट ओनली दैट द सिग्मा एक्स इज एक्टिंग on the inclined plane, we have to find the stress of sigma x on the inclined plane or oblique plane. हमें no other stress is there, there is only sigma x and we have to calculate the sigma x on the inclined plane. You understand that? For that, what we have done, we have just taken this type of diagram. This is the inclined plane. Sigma x is acting on this diagram. Now what we will do, just cut this. आप इसको क्या कीजिए, डायग्राम को कट करें और इंक्लाइन प्लेन की जो डायग्राम है इसको सेपरेट कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं दैट राइट। So this is the inclined plane body and stresses, this is your sigma x here. Suppose this is your A, B and C, right? तो एक स्ट्रेस ये है, तो एक स्ट्रेस जहां पे this is your stress under this. That is sigma x and sigma x. You understand? So sigma x is acting. This angle is theta because inclined plane. This makes an angle theta with the vertical. This is vertical and inclined plane is making an angle theta with the vertical. जहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? And sigma x is acting on this. अब देखिए sigma x इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर है। दिस इज नॉर्मल टू द वर्टिकल प्लेन। तो जहां पे तो जो आपकी स्ट्रेस होगी तो नेचुरली ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी। वट दिस सिग्मा एक्स इज एक्टिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, अंडरस्टैंड इट। सो इट मीन्स दैट दिस सिग्मा एक्स इज नीदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। जे ना ही आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और ना ही ये आपका क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो आपको जहां पे ये स्ट्रेस जो मिलेगी, वी हैव टू रिजॉल्व द स्ट्रेस, बट द पॉइंट इज वी कैनॉट रिजॉल्व द स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, राइट। रिजॉल्व किसको करते हैं हम? फोर्स को करते हैं। वी डोंट रिजॉल्व द स्ट्रेस, हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए means that first we have to convert the stresses, ये जो आपकी particular stress sigma x है, and we have to convert the stress in the force. हमें स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करना है, यू अंडरस्टैंड। तो ये आप इसको, इसके आगे हम इसका कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए सिग्मा एक्स को हमने फोर्स में कन्वर्ट करना, तो सिग्मा एक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स दिस इज इक्वल टू, अगर फोर्स आपकी पी एक्स है, मैं कहता हूं फोर्स पी एक्स है,
पी एक्स इज द फोर्स, राइट। तो क्या होगा इसमें, सिग्मा एक्स को हमने फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो पी एक्स दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है ना, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, राइट। तभी तो ये सिग्मा एक्स जो है फोर्स, पी एक्स इज अ फोर्स, लिख लीजिए आप। तो पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स फोर्स है आपके, यू अंडरस्टैंड दिस। सो पी एक्स दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एरिया, अंडरस्टैंड, जहां तक चीजें क्लियर हैं। हम इसको फोर्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू रिजॉल्व दिस। ये जो आपकी सिग्मा एक्स की वैल्यू है इसको हमें रिजॉल्व करना है, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट में। बट वी कैनॉट रिजॉल्व द स्ट्रेसेस, वी कैन ओनली रिजॉल्व द फोर्स। तो सो इट मीन्स दैट वी हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रेसेस इनटू द फोर्स। तो इसके लिए पी एक्स आ गया एरिया। अब एरिया क्या है इसमें, देखिए सिग्मा एक्स इंटू, इसमें आ जाइए क्या आएगा, ए बी इंटू टी, ए बी वर्टिकल इनटू, अगर मैं कहता हूं टी इज द स्मॉल थिकनेस ऑफ दिस साइड, टी जो है स्मॉल थिकनेस है, तो पी एक्स इज ए बी इंटू टी, वेयर टी इज थिकनेस। टी क्या है आपकी, थिकनेस, यू अंडरस्टैंड, एंड इट इज हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू, इसकी वैल्यू स्मॉल है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ए बी, ये पी एक्स आपका आ गया, पी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है तो ये जो हमने स्ट्रेस लिखा था इसका तीसरा डायग्राम भी बनता है, तो इसी को मिटा के कर लीजिए आप। सिग्मा एक्स की जगह क्या कर लें आप, जहां पे पी एक्स लिख लें, राइट, क्योंकि मैंने सिग्मा एक्स को फोर्स में कन्वर्ट कर लिया, यू अंडरस्टैंड। नाउ रिजॉल्व द फोर्सेस। अब इसको क्या करेंगे, हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इन टू कंपोनेंट, पी एक्स को। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा। सो वन कंपोनेंट इज नॉर्मल, ये आपका आ गया normal component, and one component is the tangential component, means along this, right, एक normal है और एक आपका tangential component है। So this force Px we have divided into component। जहां तक चीजें क्लियर है, अब देखिए I have divide this two component, right? अब देखिए this is your normal component and this is your tangential component, right? अब this inclined plane is making an angle theta with the vertical। ये inclined plane जो है वो verticals के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब मुझे बताइए जहां पे एंगल थीटा कहां बनेगा, एंगल थीटा कहां बनेगा, जो आपका इंक्लाइंड का नॉर्मल होगा, जो इंक्लाइंड का नॉर्मल आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाएगा, वो आपका एंगल थीटा के बराबर होगा। समझिए इसको, इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा, देन इट्स नॉर्मल will make an angle theta with the horizontal। So this is your horizontal, right? ये px लिख लो, this is your horizontal and this makes an angle theta here। जहां तक चीजें क्लियर है, ये थीटा एंगल इसने जहां पे बना लिया। अब जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा होगा विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो फोर्स क्या होगी आपकी, दैट इज पी एक्स
cos थीटा, राइट। ये जो कंपोनेंट आपको देगा px cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है along this टेंजेंशियल कंपोनेंट आप कह सकते हैं along this, ये आपको कंपोनेंट देगा px sin थीटा। यू अंडरस्टैंड? जहां तक चीजें क्लियर हैं, क्या किया मैंने आई हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा एक्स, यूनिएक्सियल लोडिंग लिया मैंने। आई जस्ट फॉरगेट अबाउट द अदर स्ट्रेसेस कि वेदर दी स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन दिस आर नॉट। So I have just taken one stress, that is sigma x, and now I am calculate the value of this stress on the oblique plane, inclined plane. उसके लिए I have just taken the inclined plane, only one stress. So sigma x, ये inclined plane को मैंने कट के इसको इसका बॉडी से ड्रा करके इसको सेपरेट करके जहाँ पे रख दिया। So this stress sigma x is acting here, sigma x is acting here, right? This stress is normal to this AB. So जहां पे आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा, यू अंडरस्टैंड, जो आपकी स्ट्रेस होगी ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी जहां पे, बट ये जो स्ट्रेस है जहां पे सिग्मा एक्स, दिस इज ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो आपकी एक्ट कर रही है, दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस स्ट्रेस इज नीदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल, राइट। सो वी हैव टू रिजॉल्व द स्ट्रेस, हमें उस स्ट्रेस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। सो वी कैनॉट रिजॉल्व द स्ट्रेस डायरेक्टली, स्ट्रेस को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रेस इनटू द फोर्स, हमें स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करना है, यू अंडरस्टैंड। तो स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो आपका px है, px इज द फोर्स, राइट, px इज द फोर्स। तो क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एक्स दिया है, एरिया क्या है, दैट इज ए बी इंटू टी, दैट इज द एरिया। तो पी एक्स इज सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी। इस इक्वेशन को आप रख लीजिए संभाल के, ये आगे इक्वेशन आपकी काम आएंगे, यू अंडरस्टैंड दिस। तो नाउ वी हैव रिजॉल्व दिस कंपोनेंट, जो फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व किया, वन कंपोनेंट यू विल गेट दिस पी एक्स कॉस थीटा, एंड द सेकंड कंपोनेंट यू हैव गॉट दिस px sin थीटा। ये जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज द नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन AC। तो ये जो आपका px cos थीटा कंपोनेंट होगा, जहां से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा थीटा, जहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सिग्मा एट एन एंगल थीटा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट एन एंगल थीटा। तो सिग्मा थीटा दिस इज इक्वल टू px cos थीटा, and this component which is along tangential component you can say, so this component will give you the value of tau theta, जहां से हमें tau theta की वैल्यू मिलेगी, you understand this। तो हमें जहां से दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी हमें px cos थीटा और एक हमें वैल्यू मिलेगी px sin थीटा। जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको, right? So up to this the things are clear. Now अब आइए ये साइन कन्वेंशन के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब साइन कन्वेंशन हमें अंडरस्टैंड करना, ये आप इक्वेशन को लिख लीजिए, इसको मैं आई एम गोइंग टू रब इट, मिटाने जा रहा हूं। आप देखिए साइन कन्वेंशन लिखते हैं यहां पे आप, ये भी पॉइंट समझने वाला है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में इफ आई विल टॉक टू द नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल फोर्स, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करता हूं तो नॉर्मल फोर्स की बात करता हूं, तो नॉर्मल फोर्स आपकी, जैसे आपने पढ़ा है, नॉर्मल फोर्स दो तरह की होगी, एक होगी आपकी एक्सियल फोर्स और एक होगी आपकी कंप्रेसिव फोर्स, राइट।
तो एक्शियल फोर्स एंड सेकेंड वन कंप्रेसिव, एक्शियल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। यू अंडरस्टैंड। अब जैसे आपको पता है, ये पीछे भी आपने पढ़ा है, जो एक्शियल फोर्स होगी उसके लिए हम ये सपोज ये आपके इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, ये जो फोर्स है दिस इज योर एक्शियल फोर्स। तो एक्शियल फोर्स के लिए आप कौन सा साइन लेते हैं? एक्शियल फोर्स के लिए साइन लेते हैं हम पॉजिटिव। तो अगर आपका इंक्लाइन प्लेन है, फोर्स ऐसे एक्ट करिए तो दिस इज हैविंग द पॉजिटिव साइन एक्शियल फोर्स के लिए, राइट। इसी डायग्राम के ऊपर शो कर दूंगा मैं आपको। और अगर आपका कंप्रेसिव फोर्स है तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए हम लेते हैं नेगेटिव साइन। सपोज कंप्रेसिव फोर्स आएगी ऐसे, विच इज एक्टिंग लाइक दिस, तो इसके लिए साइन क्या होगा? नेगेटिव। यू अंडरस्टैंड। ये साइन तो आपको क्लियर है, बिकॉज ये ऑलरेडी आपने पढ़े हैं काफ़ी बार कि आपको पता है कि एक्शियल फोर्स को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और जो कंप्रेसिव फोर्स है उसके लिए हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। जहां तक तो चीजें क्लियर थी। अब आ जाइए आपकी जो शेयर फोर्स होगी, जहां से शेयर स्ट्रेस पैदा होगी, तो आपकी जो शेयर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन होगा, राइट, वो कैसे होगा? यू अंडरस्टैंड दिस। बट इन केस ऑफ टाउ, वो तो उसके केस में तो हो गया, बट इन केस ऑफ टाउ देखिए, वट इन केस ऑफ अब टाउ में देख लीजिए आप, बट इन केस ऑफ टाउ देखिए, इट इज एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन दिस। जहां तो ये इस तरीके से एक्ट करेगी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, जहां तो ये ऐसे एक्ट करेगी ऊपर को, और जहां ये ऐसे एक्ट करेगी नीचे को। यू अंडरस्टैंड, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ये जो स्ट्रेस है या ये जो फोर्स है, it is acting towards the anti-clockwise direction। अगर इसकी आप डायरेक्शन देखें तो it will rotate the body towards the anti-clockwise direction। तो आप कह सकते हैं ये आपका आ गया anti-clockwise direction, और ये आपका आ गया clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टाउ की वैल्यू हम लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। जो मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, आप उल्टा भी ले सकते हो। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आई एम जस्ट टेकिंग हेयर नेगेटिव, आई एम कंसिडरिंग द वैल्यू इज नेगेटिव। आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी लिख सकते हो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी लिख सकते हो, बट आई एम कंसिडरिंग हेयर इन द दिस प्रॉब्लम, जो मैं आपको जहां पे जो मैं ड्राइव कर रहा हूं, जहां पे इक्वेशंस, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई एम टेकिंग पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई एम टेकिंग नेगेटिव। यू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस जो आपको याद रखने हैं। तो ऑन दिस बेसिस के ऊपर ही हम इक्वेशंस जो है जहां पे ड्राइव करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब देखिए, अब आ जाइए इसके ऊपर। तो हमें एक फोर्स आपकी मिली, क्या मिला जब हमने इसको रिजॉल्व किया px को, तो एक फोर्स मिली हमारी px cos थीटा, और एक फोर्स मिली px sin थीटा, राइट। px cos थीटा एंड p
एक्स साइन थीटा, जो पी एक्स कॉस थीटा है, दिस इज नॉर्मल टू दिस इंक्लाइन प्लेन। पी एक्स कॉस थीटा नॉर्मल टू दिस इंक्लाइन प्लेन। तो इसका मतलब है जहां से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। जहां से हमें पी एक्स कॉस थीटा से वी विल गेट द नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस एट एन एंगल थीटा, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर निकाल रहे हैं ना। सो पी एक्स कॉस थीटा से वी विल गेट द नॉर्मल स्ट्रेस, और जो पी एक्स साइन थीटा है वी विल गेट द शियर स्ट्रेस। जहां से हमें क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस, दैट इज टाउ थीटा। यू अंडरस्टैंड दिस? पी एक्स cos theta we will get the normal stress, and this we will get the shear stress, right? अब देखिए, जहां से हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा तो हमें निकालना है सिग्मा थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा थीटा। फोर्स हमारे पास क्या है, ये है। स्ट्रेस निकालनी होगी तो हमें क्या लेना पड़ता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा ना। तो ये आपका आ गया सिग्मा थीटा, आ गया पी एक्स कॉस थीटा नॉर्मल फोर्स डिपेंडेड बाय एरिया। एरिया किसका लेंगे हम, इंक्लाइन प्लेन एसी का। यू अंडरस्टैंड दिस? एरिया, आर यू कैन से सिग्मा थीटा, दिस इज इक्वल टू पी एक्स कॉस थीटा। अब एरिया क्या होगा, ए सी इंटू टी, राइट? टी इज द थिकनेस आई हैव टेकन, ए सी दिस साइड इंक्लाइन प्लेन। तो सिग्मा थीटा आएगा पी एक्स इंटू कॉस थीटा। अब आगे कर लीजिए सिग्मा थीटा। पी एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी। पी एक्स की क्या वैल्यू थी, जो मैंने कहा था इसको संभाल के रखो। पी एक्स दोबारा निकाल लेते हैं हम, ये सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी, यही निकाला था ना पी एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी। यू अंडरस्टैंड? तो पी एक्स की जगह आई कैन पुट दिस वैल्यू सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी, राइट? तो यू पुट देयर, that is sigma x into AB into T into cos theta divided by AC into T, divided by AC into T. You understand? T और T आपका कैंसिल हो गया। ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो इंक्लाइन प्लेन का मैंने शो किया है यहां से, यू कैन सी हियर, सॉरी, ए बी, दिस इज योर ए बी, दिस इज योर बेस, बिकॉज एंगल थीटा इज मेकिंग। अगर इस तरीके से हम रखें तो ये भी आपका बेस है, एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे। तो इसके परपेंडिकुलर के अपोजिट, बेस के अपोजिट कौन सी साइड है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए बी आपका क्या है, बेस है। तो ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। हम ए बी अपॉन ए सी की जगह कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, वी कैन राइट इट। तो ए बी अपॉन ए सी की जगह आप कॉस थीटा लिख लीजिए। टी और टी आपका कैंसिल हो गया, देयरफॉर सिग्मा थीटा is equal to sigma x cos square theta, right? सिग्मा थीटा क्या आया, सिग्मा x cos square theta। तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली आपके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको, ये कैलकुलेशंस, ये सारा डेरिवेशन जो मैंने किया, this is clear to you? Inclined plane, I have considered the inclined plane, only uniaxial loading I am taking, means I am just considering that there is only one stress
is sigma x is acting on the inclined plane, right? तो सिग्मा x जो है मेरा एक्ट कर रहा है, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिग्मा ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। मैं सिर्फ एक स्ट्रेस ले रहा हूं जहां पे ये जो बॉक्स बनाया है, जहां से हमने शो किया था वाई एक्सियल स्ट्रेस की कंडीशंस के ऊपर, तो ओनली आई एम जस्ट कंसीडरिंग सिग्मा एक्स, दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, एंड आई हैव टू फाइंड सिग्मा थीटा आर द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द ओब्लिक प्लेन, राइट? बॉडी को कट किया, स्ट्रेसेस लिखी, स्ट्रेसेस को फोर्सेस में कन्वर्ट किया, फोर्सेस में कन्वर्ट, बिकॉज स्ट्रेसेस का हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, फोर्स में कन्वर्ट किया। फोर्स को कन्वर्ट करने के बाद ये जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपकी फोर्स आई थी पी एक्स, वो फोर्स आपकी ना ही वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, इसलिए हमें उस फोर्स को हमें क्या करना पड़ा, रिजॉल्व करना पड़ा। वो फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई, वन कंपोनेंट इज पी एक्स कास थीटा एंड द सेकंड कंपोनेंट इज पी एक्स साइन थीटा। पी एक्स कास थीटा, दिस कंपोनेंट इज मेकिंग, दिस इज द नॉर्मल जो आपका था इसका इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल, दैट इज पी एक्स कास थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका कंपोनेंट जो है ये क्या शो करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और जो अदर कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड द टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट विल शो द, इससे हमें क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड? और बाकी ये आपकी कैलकुलेशन कर ली, पी एक्स कास थीटा से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस, पी एक्स साइन थीटा से शेयर स्ट्रेस एट एंगल थीटा। दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमें नॉर्मल स्ट्रेस देगा एट एंगल थीटा, एंड द सेकंड कंपोनेंट दैट विल गिव द शेयर स्ट्रेस एट एंगल थीटा। तो ये आगे कैलकुलेशन किया, और सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कास स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो सिग्मा थीटा की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आ जाइए टाउ थीटा निकालेंगे हम। अब देखिए टाउ थीटा, टाउ थीटा इज शोन बाय दिस कंपोनेंट पी एक्स साइन थीटा, जहां से हमें टाउ थीटा की वैल्यू मिलेगी, राइट? तो टाउ थीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, पी एक्स साइन थीटा कंपोनेंट जो हमने रिजॉल्व किया, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ टाउ थीटा। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसलिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा साइन लिया था हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्हाट द साइन वी हैव टेकन, वी हैव टेकन द माइनस साइन, राइट? तो दिस इज माइनस, एंड दिस विल गिव यू फ्रॉम हियर, ये जो कंपोनेंट है विल give the value of tau theta. You understand? क्लॉकवाइज कंपोनेंट है, साइन कन्वेंशन आपको दिया है, क्लॉकवाइज कंपोनेंट आई एम टेकिंग हियर माइनस साइन, सम पीपल टेक क्लॉकवाइज कंपोनेंट पॉजिटिव साइन आल्सो। तो इसमें शेयर स्ट्रेस में साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर स्ट्रेस में साइन हैज नो इंपॉर्टेंस देयर, बट फॉर कैलकुलेशन आई हैव टेकन हियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। यू अंडरस्टैंड? अब इसको भी हम टाउ थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ थीटा पी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है, सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी साइन थीटा अपॉन ये फोर्स आ गई, पी एक्स क्या था, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी साइन थीटा
वैल्यू माइनस तो लिखी है इसमें, माइनस एरिया क्या आएगा इसका, वही ए सी इंटू टी, राइट। टी और टी कैंसिल हो गया, राइट। Right, so this is equal to minus sigma x AB upon AC cos theta. This is AB, this is upon AB. AC क्या होगा, cos theta आ जाएगा, इसकी जगह हम cos theta लिख लें, cos theta and sin theta. You understand? Or you can say tau theta, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 के साथ डिवाइड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये आ गया सिग्मा एक्स माइनस साइन तो होगा इनटू 2 साइन थीटा कास थीटा डिवाइडेड बाई 2। फर्क पड़ा? नो, ठीक है। 2 साइन थीटा कास थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, राइट। So this is your minus 2 minus sigma x sin 2 theta by 2, right, minus sigma x sin 2 theta by 2। ये वैल्यू आपकी आ गई टाउ थीटा का वैल्यू। जहां तक चीजें क्लियर हैं, माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बाई 2। सो दिस इज वैल्यू ऑफ योर दिस इसको ऐसे करके लिख लीजिए, माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, दिस इज टाउ थीटा। तो ये वैल्यू सारी आ गई आपकी, ठीक है। जहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द सिग्मा एक्स इज मैक्सिमम एंड वेयर द टाउ इज मैक्सिमम। हमें अब ये देखना है कि सिग्मा जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा और टाउ हमें कहाँ पे मैक्सिमम होगा, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, टाउ थीटा यू हैव कैलकुलेटेड माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, ये मिटा दीजिए। So first we will take where the sigma x is maximum, where the sigma theta is maximum, not max। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओब्लिक प्लेन है, उसमें तो कहीं भी सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। इट डजंट मीन कि सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मैक्सिमम होगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैक्सिमम होगा, बिकॉज इट इज़ अ इंक्लाइंड प्लेन, तो सिग्मा वर्टिकल भी मैक्सिमम हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड दैट सिग्मा थीटा कहाँ पे आपका मैक्सिमम है। सो सिग्मा थीटा की क्या वैल्यू थी, दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर थीटा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। सिग्मा क्या था आपका, सिग्मा थीटा दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर थीटा, राइट।
अब वी हैव टू फाइंड कि सिग्मा थीटा वेयर इट इज मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगा। अब देखिए थीटा है, थीटा अगर मैं लेता हूं 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा 90 इज 0 है ना, कास 90 आपका 0 है। कास 30 लेता हूं √3/2, कास 60 लेता हूं 1/2, राइट। अगर मैं थीटा अगर मैं थीटा 0 डिग्री लेता हूं तो आपको पता है कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, so you can say this is the maximum value, therefore sigma theta is equal to sigma theta, sigma maximum लिखो, sigma maximum is equal to sigma x at theta is equal to 0 डिग्री, राइट। समझ आया, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू सिग्मा एक्स के बराबर होगी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, नाउ चेक द वैल्यू ऑफ, ये तो सिग्मा थीटा की वैल्यू अपने मैक्सिमम चेक कर ली एट थीटा। अब टाउ थीटा की वैल्यू वी हैव टू चेक, राइट, वेयर टाउ थीटा इज मैक्सिमम और मिनिमम। टाउ थीटा कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल टाउ थीटा में देखिए आप, जो टाउ थीटा का इक्वेशन है, टाउ थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 θ/2, right? This is the equation of the tau theta which we have calculated, right? अब देखिए, जहां से इस इक्वेशन को देखिए आप, जहां से नीचे करते हैं इसके, अगर मैं साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा, तो ये साइन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, साइन 90 डिग्री के ऊपर है ना। साइन 90 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन्स 2 थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री होगा, तो थीटा क्या होगा, एक 45 डिग्री होगा, और दूसरा 2 थीटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक तो 90 डिग्री के ऊपर होगा, दूसरा 270 डिग्री के ऊपर, 270 डिग्री, राइट। तो 270 डिग्री आपका कहाँ पे चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। यू अंडरस्टैंड? सो इसका मतलब ये है कि जो आपका टाउ थीटा है, ये एक तो 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, टाउ थीटा 45 डिग्री के ऊपर। दिस इज इक्वल टू प्लस सिग्मा x/2, दिस इज प्लस सिग्मा x/2, और मिनिमम कहां पे होगा, माइनस 135 के ऊपर, तो मिनिमम टाउ थीटा 135 के ऊपर होगा, राइट। तो इसकी वैल्यू होगी माइनस सिग्मा x/2, राइट। तो इसका मतलब है जो आपका टाउ थीटा है वो मैक्सिमम क्या होगा, प्लस माइनस सिग्मा x/2। सो टाउ थीटा मैक्सिमम क्या होगा, टाउ थीटा मैक्सिमम
मीन्स प्लस माइनस सिग्मा x/2। वो मिनिमम नहीं था, वो मैक्सिमम ही था, बट नेगेटिव साइन था जो मैंने मिनिमम लिख दिया उसको, वो मैक्सिमम था। मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आपकी दो एंगल के ऊपर आएगी, एक 45 डिग्री के ऊपर आएगी और एक आपकी आएगी 135 डिग्री एंगल के ऊपर, राइट। तो 135 डिग्री एंगल जो है वो माइनस से शो करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए जो टाउ थीटा मैक्सिमम जो आपका होगा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा x/2। तो ये तो केस आपका फर्स्ट क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सिग्मा मैक्सिमम क्या है, सिग्मा थीटा, सिग्मा मैक्सिमम जाता, सिग्मा मैक्सिमम लिख लो, तथा सिग्मा थीटा मैक्सिमम क्या होगा जब आप ये होगा क्या सिग्मा एक्स, राइट। द टाउ मैक्सिमम इज, टाउ मैक्सिमम में लिख लो, टाउ मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा x/2। यू अंडरस्टैंड। तो ये तो फर्स्ट केस आपने कर लिया, इसमें सेकंड केस भी कर लेंगे। सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस में वी विल कंसिडर व्हेन द टू स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द प्लेन। फर्स्ट केस में हमने लिया था व्हेन द सिंगल स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द प्लेन, और जो सेकंड केस है जहां पे हम लेंगे, ये केस सेकंड कर लो, when the two stresses are acting on the plane, case second। when the sigma x and sigma y, when sigma x and sigma y are acting on द प्लेन, राइट। जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई प्लेन के ऊपर एक्ट करेंगे तो उस वक्त वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा। वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेसेस वेयर ऑन द इंक्लाइन प्लेन। जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है ये प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो डायग्राम वही वैसे ही ड्रा करनी है। ये आपका हो गया प्लेन, राइट। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसमें ये आपका एंगल इंक्लाइन प्लेन का होगा थीटा। अब इस केस में हम दो स्ट्रेसेस लेंगे, एक आपकी होगी सिग्मा एक्स और एक आपकी सिग्मा वाई, राइट। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई when the two stresses are acting on the plane। तो इसमें आप ड्रा कर लीजिए फिगर। प्लेन को कट किए, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन को कट करके बाहर निकालिए, तो ये आपकी सिग्मा एक्स है और ये आपका सिग्मा वाई है, राइट। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द stresses on the inclined plane when two stresses that is sigma x and sigma y are acting on the plane। पहले केस में जो हमने डेरिवेशन किया था सिर्फ ओनली आई हैव टेकन द सिंगल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एक्स। अब देखिए इसका जो अपोजिट होगा, इसमें भी आपका ये सिग्मा एक्स होगा और ये जो इसका एक्स होगा इसमें आपका सिग्मा वाई होगा, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस। I'll just see here sigma x and sigma y, this is acting on the inclined plane। ये किस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इट मीन्स दैट these stresses are neither
पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। सिग्मा एक्स को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा और सिग्मा वाई को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वी कैन नॉट रिजॉल्व द स्ट्रेसेस, वी कैन रिजॉल्व द फोर्सेस। हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं करते। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रेसेस इनटू द फोर्सेस। हमें स्ट्रेसेस को फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप ले लीजिए, आ जाइए सिग्मा एक्स। सपोज इफ आई से, जहां पे जो सिग्मा एक्स फोर्स है दैट इज पी एक्स, और जो सिग्मा वाई स्ट्रेस के ऊपर फोर्स है आई एम टेकिंग दैट इज पी वाई। तो सिग्मा एक्स डेट, तो आपका सिग्मा एक्स के ऊपर फोर्स क्या है, पी एक्स। तो पी एक्स किसके बराबर आएगा, क्योंकि हम रिजॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेसेस को इनटू द फोर्सेस। स्ट्रेस क्या है यहां पे, सिग्मा एक्स into what is, where it is acting, it is acting on the vertical plane AB, that is AB, and T is the thickness which we have taken। ये आ गई वैल्यू px की। राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ px। अब पी वाई की क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि सिग्मा वाई की जगह हमें क्या लेना है, जहां पे पी वाई लेना है। तो पी वाई फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। पी वाई दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, बी सी, ये वाला एरिया जहां पे एक्ट कर रही है बी सी के ऊपर, बी सी इंटू टी। टी इज द थिकनेस, दैट इज बी सी इंटू टी। तो ये दोनों फोर्सेस हमें मिल गई। पी एक्स और पी वाई, यू अंडरस्टैंड। अब चलो हम इसको ड्रा कर लेते हैं डायग्राम। अब इसको हम फोर्सेस में ले लेंगे। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ये पता ही है आपको, जैसे पहले केस में बताया था, सेम थिंग है। इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी, राइट। अब आप ले लीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब ये आपका आ गया पी एक्स। अगर इधर आया तो जहां पे भी आपका इस तरीके से पी एक्स आ गया, राइट। ये आपका जहां पे पी वाई था और ये आपका पी वाई। अब स्ट्रेस को हमने फोर्सेस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू resolve the stresses into two components because these are acting, ये जो हम inclined plane के ऊपर निकाल रहे हैं। And if you will see the nature of the stresses on the inclined plane px and py, both are neither they are parallel nor perpendicular। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। तो इसका हम पहले एक वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। सपोज दिस इज योर, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, राइट। और इसका एक आ गया अलॉन्ग दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट। ये हमने पी एक्स को रिजॉल्व किया तो ये फोर्स आ गई, ये वाली मैं ब्लैक पेन से ही लिखूंगा। ये जो जे फोर्स है ये होगी आपकी पी एक्स कास थीटा, राइट। और ये जो फोर्स है रेड पेन से जो मैंने किया है ये आपकी होगी पी एक्स साइन थीटा। ये क्यों आई, ये सेम चीज़ है यहाँ पे
ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, राइट। एंगल थीटा, दिस इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। देखिए ये एसी प्लेन है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो अपने हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल थीटा। तो कहने का मतलब ये जो आपका एंगल होगा थीटा होगा। तो इसका मतलब नॉर्मल प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। सो इट मीन्स दैट ये जो नॉर्मल जे वाला है कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट, जे हमें कौन सी स्ट्रेस देगा, पी एक्स कास थीटा देगा, क्योंकि थीटा ये नॉर्मल जो आपका नॉर्मल आपकी ये कंपोनेंट है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो दिस कंपोनेंट पी एक्स कास थीटा, दिस कंपोनेंट बिकम्स पी एक्स कास थीटा, एंड दिस कंपोनेंट which is along the tangential component you can say this is your px sin theta। तो एक तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब आ जाइए py के ऊपर। तो py को भी हमें रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में। अब py का देखिए, एक कंपोनेंट तो आपका इसी साइड पे आ जाएगा, ये py कंपोनेंट जो भी आगे होगा, और दूसरा कंपोनेंट आपका ये पी वाई कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, राइट। अब देखिए जहां पे एंगल थीटा कहां बनेगा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट पर दिस, ये इसी का, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, राइट। इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, जे वाला जो कंपोनेंट है वो एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है। इसका मतलब ये जो पी ऊपर मैंने लिखा है, ये आपका कंपोनेंट क्या होगा, दिस कंपोनेंट इज जे एंगल, जहां पे थीटा बनेगा, अगर आप देखिएगा अल्टरनेट एंगल है ये वाला, राइट। जे एंगल और इसका जे एंगल, ये अल्टरनेटिव एंगल है, तो ये एंगल थीटा जहां पे बनाएगा, तो इसका मतलब ये थीटा एंगल जो जहां पे बनाएगा, ये जो कंपोनेंट होगा आपका, ये होगा पी वाई कास थीटा। समझा गई बात ये। This angle and this angle, alternate angle, both are parallel to each other. This is also vertical, this is also vertical, and this is making inclined plane is there. If this angle is theta, it means this angle is theta. You understand? तो ये जो एंगल थीटा बना रहा है ये वाला कंपोनेंट, राइट, तो ये क्या होगा, ये कंपोनेंट आपका होगा पी बाई कास थीटा, और ये जो आपका कंपोनेंट है, ये जो रेड वाला, ये होगा पी वाई साइन थीटा, पी वाई साइन थीटा। यू अंडरस्टैंड, पी वाई कास थीटा एंड पी वाई साइन थीटा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। सो दीज थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू। जो हमने दो फोर्सेस जो रिजॉल्व किया यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। जहाँ पे दोबारा देख लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। I am taking here the two forces are acting on the plane। अब जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, I am just doing the derivation of the two forces which are acting on the plane, और मुझे स्ट्रेसेस जो हैं ओब्लिक प्लेन के ऊपर निकालना है। दिस इज माई क्वेश्चन। मुझे स्ट्रेसेस कहाँ पे निकालना है, ओब्लिक प्लेन के निकालना है। सेम प्रोसीजर इज देयर इज नो चेंज एट ऑल। हमने क्या लिया, प्लेन लिया, उसमें इंक्लाइन प्लेन ले लिया, इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, स्ट्रेसेस ले ली, फोर्सेस में कन्वर्ट किया, और इसी तरीके से अब ये जो दो स्ट्रेसेस थी, जब मैंने इसको फोर्सेस में कन्वर्ट किया,
तो ये स्ट्रेसेस आप देखते हैं, दीज आर नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, सो आई हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस, आई हैव टू रिजॉल्व द स्ट्रेसेस। पर स्ट्रेसेस हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिजॉल्व स्ट्रेसेस को हम फोर्सेस में कन्वर्ट किया पहले। तो ये फोर्सेस में मैंने कन्वर्ट किया, पी एक्स मैंने फोर्स ले लिया सिग्मा एक्स का, और पी वाई मैंने फोर्स ले लिया पी वाई का। अब ये जो दो फोर्सेस थी, इनको मैंने पी एक्स और पी वाई को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, दे आर नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, तो मैंने इनको रिजॉल्व किया। अब आ जाइए, पहले फोर्स थी पी एक्स, इसको भूल जाइए, यू फॉरगेट अबाउट दिस, पी एक्स फोर्स ले लीजिए। पी एक्स फोर्सेज में एक ये कंपोनेंट बनेगा और ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट ये बनेगा, और ये इसका अलोंग का टेंजेंट कंपोनेंट बनेगा। नाउ वी हैव टू सी डिसाइड कि कौन से कंपोनेंट के ऊपर आपका cos थीटा होगा और कौन से कंपोनेंट के ऊपर आपका sin थीटा होगा, राइट। तो एज ये जो कंपोनेंट है, इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल, सो इसका जो नॉर्मल है, दिस इज इट्स नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल है, इसका नॉर्मल भी क्या कर रहा है कि वो इंक्लाइन प्लेन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा। सो इट मीन्स दैट जे आपका कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल कंपोनेंट पी एक्स साइन थीटा होगा, और दिस इज आपका पी एक्स cos थीटा होगा। अब आ जाइए इसके ऊपर पी वाई के ऊपर, तो पी वाई को भी हम दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। पी वाई को भी हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक अलोंग द टेंजेंट और अलोंग इसके। अब इसमें देखिए, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो इस कंपोनेंट के साथ ये एंगल थीटा बनाएगा, और जिस कंपोनेंट के साथ ये एंगल थीटा बनाएगा वो कंपोनेंट आपका cos थीटा होगा। तो इसका मतलब ये जो पी वाई, ये कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट दिस इज पी वाई cos थीटा होगा, राइट, और ये वाला कंपोनेंट होगा पी वाई sin थीटा। यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज पी वाई cos थीटा एंड पी वाई sin थीटा। तो जहां पे तक तो चीजें आपकी क्लियर हो गई, राइट। अब आइए इसकी कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर। नाउ कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। जहां पर मुझे बता दीजिए, अगर आपको कहीं इस पॉइंट के ऊपर समझ नहीं आए तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट, बट ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें सिर्फ रिजॉल्व किया है, कोई मुश्किल नहीं, और हर के फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, पी एक्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, पी एक्स cos थीटा, पी एक्स sin थीटा, और पी वाई के भी दो कंपोनेंट होंगे, पी वाई sin थीटा, पी वाई cos थीटा। नाउ वी हैव टू सी वेयर द कंपोनेंट cos थीटा एंड वेयर द कंपोनेंट sin थीटा। तो जैसे आपको पता है कि ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल का, राइट, वो क्या होगा, थीटा एंगल होगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इस तरीके से एक जहाँ पे कंपोनेंट हो गया, और इसका मैंने बताया अल्टरनेट एंगल है, तो अगर ये आपका थीटा होगा, ये आपका थीटा था, तो ये आपका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है जो रिजॉल्व किया था मैंने, ये आपका पी वाई cos थीटा होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो पी वाई sin थीटा होगा, राइट। अब आइए ये कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर, कैलकुलेशन करेंगे इसकी। पहले हम देख लीजिए सी थीटा, सिग्मा थीटा। अब देखिए एक चीज आप नोट करेंगे, देयर आर 2 नॉर्मल कंपोनेंट्स एंड 2 टेंजेंशियल कंपोनेंट आर पैरेलल कंपोनेंट्स। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स हमें क्या शो करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, हमें उससे क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, राइट। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए भी हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, और जब हम शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे। तो पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस के कंपोनेंट तो लिख ले, क्या है, सिग्मा थीटा निकालना है हमने। एक आपका कंपोनेंट आया पी एक्स cos थीटा, राइट। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या आया, दूसरा कंपोनेंट पी वाई cos थीटा, राइट। तो एरिया क्या होगा, ए सी इंटू टी, पी एक्स cos थीटा प्लस ये फोर्स अपॉन एरिया होगा ना,
स्ट्रेस निकालने हैं, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया क्या होगा हमारा AC इंटू टी। ये क्लियर हो गया चीज आपको, राइट? क्यों? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग नॉर्मल स्ट्रेस एट एंगल थीटा। सो जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, Px cos थीटा और Py cos थीटा, वी विल गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, राइट? Px cos थीटा एंड Py sin थीटा। Px cos थीटा एंड सॉरी, ये नॉर्मल है ना, दिस इज नॉर्मल। Px cos थीटा एंड Py sin थीटा, this is the normal of this, right? ये नॉर्मल कंपोनेंट है, दिस इज Px cos थीटा प्लस Py sin थीटा, सिग्मा थीटा। अब इसका मतलब ये हो गया सिग्मा थीटा, दिस इज इक्वल टू Px हमारा क्या था, Px हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, Px इज इक्वल टू सिग्मा x इंटू AB इंटू टी, राइट? तो Px की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा x इंटू AB इंटू टी cos थीटा प्लस व्हाट इज योर Py निकालेंगे, दिस इज सिग्मा बाई इंटू BC इंटू टी, सिग्मा बाई BC इंटू टी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई AC इंटू टी। टी और टी तो सभी का कैंसिल हो जाएगा ये, राइट? टी और टी कैंसिल हो गया। अब ये आ गया सिग्मा थीटा। मुझे बताइए AB अपॉन AC क्या होगा, cos थीटा। AB अपॉन AC क्या है, cos थीटा। सिग्मा x cos थीटा राइट, प्लस BC upon AC, this is perpendicular, this is hypotenuse, that is sin theta, that is sigma by into sin theta into sin theta। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई आपको? दैट मीन्स इसको मिटा लो। Therefore सिग्मा थीटा इज इक्वल टू, सिग्मा थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, सिग्मा थीटा दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यू अंडरस्टैंड? So this is your normal stress at an angle theta when the two forces are acting on the plane. Now calculate tau theta. जहां तक क्लियर है? अब आप टाउ थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। टाउ थीटा
टाउ थीटा में क्या क्या आएगा, टेंजेंशियल फोर्सेस कौन सी हैं, एक पी एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई कास थीटा। हाँ, अब देखिए जहां पे साइन कन्वेंशन लेना है हमने, ये जो पी एक्स साइन थीटा है इट इज मेकिंग एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं इसको माइनस ले लूंगा, माइनस पी एक्स साइन थीटा, जैसे साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था। और जो पी वाई कास थीटा है जे मेकिंग एन एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एक्टिव वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, तो प्लस ले लूंगा पी वाई कास थीटा। समझाया? हमें जो शेयर स्ट्रेस है उसके लिए भी हमारे पास दो फोर्सेस हैं टेंजेंशियल जो एक्ट कर रही हैं, ये एक पी एक्स कास थीटा है और एक पी वाई कास थीटा है, पी एक्स साइन थीटा है और पी एक्स कास थीटा है। और जहां तक एज पर द साइन कन्वेंशन यू नो, साइन कन्वेंशन जो इसका है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज का नेगेटिव है। सो एज पर द साइन कन्वेंशन आई हैव टेकन द वैल्यू। सेम चीज है, पुट कर लीजिए आप, टाउ थीटा पी एक्स क्या था, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी साइन थीटा प्लस पी वाई क्या था, पी वाई सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी कास थीटा। स्ट्रेस निकालनी है तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ना, स्ट्रेस हमारी ये सिग्मा थीटा इक्वल नहीं है, मींस आई विल गेट द टाउ थीटा फ्रॉम दीज टू फोर्सेस, जहां से हमें टाउ थीटा की वैल्यू मिलेगी, या राइट। तो दिस इज ए सी टू टी, ये कैंसिल कर लीजिए, देयरफॉर टाउ थीटा दिस इज सिग्मा एक्स इंटू ए बी अपॉन ए सी, दिस इज कास थीटा, ये आ गया आपका कास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा बाई टी, इसका भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर है, ये आपका आएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, राइट। ये माइनस साइन भी तो लिखना है, राइट। आप इससे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर लीजिए, राइट। माइनस सिग्मा एक्स इंटू टू कास थीटा साइन थीटा प्लस सिग्मा बाई इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए दिस इज इक्वल टू टाउ थीटा निकाल रहे हैं ना, टाउ थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स इंटू साइन 2 थीटा, 2 साइन ए का, दिस इज साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा बाई साइन 2 थीटा
this is equal to 2, right? This is equal to 2. Therefore, tau theta is equal to tau theta, this is equal to minus sigma x plus sigma y sin 2 theta by 2. You understand? तो इस तरीके से जब मैंने दो फोर्सेस ली, उसमें सिग्मा थीटा की वैल्यू और टाउ थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली. यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द वे दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन. अभी तो मैंने जहां पे सिर्फ दो केस लिए हैं. एक केस लिया था जब मैंने यूनिएक्सियल लोडिंग लिया, सिर्फ मीन्स वन स्ट्रेस लिया, इंक्लाइन वन स्ट्रेस लिया प्लेन के ऊपर, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ओब्लिक प्लेन और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर. तो उसका मैंने आपको सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा निकाल के दे दिया था. एंड देन द सेकंड केस आई हैव टेकन व्हेन द टू स्ट्रेसेस sigma x and sigma y are acting on the plane and we have to calculate the stresses on the inclined plane. तो उसमें भी मैंने आपको सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा निकाल के दे दिया. आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर. अब इसके बाद जो हमारा होगा थर्ड केस हम लेंगे, वो कल के लेक्चर में लेंगे. थर्ड केस की में हम प्योर शेयर स्ट्रेस का केस लेंगे, जब सिर्फ आपका टाउ एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्ट करेगा. तो उस वक्त हमारी जो शेयर स्ट्रेसेस हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा क्या होंगी. यू अंडरस्टैंड? जब ये तीनों केसेस आपके हो जाएंगे, सिग्मा एक्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया क्या आया, उसके बाद सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई भी कैलकुलेट करके ले लिया क्या आया, एंड देन टाउ भी आप टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई एक्स करके भी आपने कैलकुलेट कर लिया. देन इसका जनरल फार्मूला बनाने के लिए देन हम सुपर इम्पोजिशन जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द जनरल इक्वेशन of the stresses when sigma x, sigma y and tau x y are acting on the plane. और उस वक्त हमारी जो stresses आपकी oblique plane के ऊपर, उसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा. यू अंडरस्टैंड? तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर उसको लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा. तो आज इतना पार्ट ही करवाऊंगा जिसमें केस 1 और केस 2 आपका क्लियर हो गया, और जो फर्दर है नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा सारा पार्ट आपका. इसका जो इसका इनकम्प्लीट पार्ट, इसका थर्ड केस लेंगे, और उसके बाद देन जनरल जो इक्वेशन है हमारी ओब्लिक प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस की, हमारी जनरल इक्वेशंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. तो जहां तक आई थिंक द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताई हैं, जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो टुडे दिस इज अप टू दिस पॉइंट ओनली, एंड द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा जनरल फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? सो थैंक यू वेरी मच.